Hello, Namaste, Adab. Today we have come to Bhaskar Sir's home, an eminent theatre personality of not only Hyderabad but all over India. He was the former HOD of Theatre Arts Department of Hyderabad University and also the founder president of Rangadhara, the theatre stream. भास्कर सर कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, अच्छा हूँ मैं। तो आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। बोलिए। And we are very excited to come here today. Thank Sir, you. he is the source of inspiration to all of us. Thank you. और आप कभी भी नहीं बोलते कि आप वही पुराना काम करो, पुराना चीज लेके बैठे रहो. Always you say कि try something new. बिल्कुल, हमेशा ट्राई कर न्यू अगर करना शुरू कर दिए, if you started doing something new, definitely there will be a good experience to you. Of course. To learn so many things in theatre. That's why I said, please start new something. Even selection of the scripts also, even the style of the production also. It I decided already, because I believe in that. Because man is a creative person, creative animal, which can create anything from anywhere, but it depends upon how he will do it, how he will face it, how he will move it, how he will approach to the subject. Then only you can do it. And if you get the satisfaction after that, then there is no end for that. There is the end for that. Actually, if you don't be satisfied with some work, some prestigious awards or so many things, because there is a vast thing in the life, you cannot change it. And if you get it done, always, if you see that one, yes, now I am satisfied with my production, if I am satisfied with my work, then your progress will be stopped. You know? So, sir, why did you choose theatre? ये जो आपका, you have so many interests in life. Yeah. Yes, it's a very interesting thing, basically. Actually, I was born in Hyderabad in 1940. I have done my studies in Vedic Dharma Prakashika High School, Shalibanda, in Marathi medium, not English medium at all, Marathi medium. And the first batch of the Vedic Dharma Prakashika High School, of 12 people, 12 students were there. We have already HSC. We have passed the HSC with very good marks. I can say that one. Second class that time. That time second class was a very big thing. Actually, first class was an entirely different thing, but second class also. But childhood is entirely different, my childhood, because I lost my father at the age of 5 years, my 5 years. And I was having only one sister and grandmother and mother. Okay. शालीबंडा में और वहाँ पर क्या हुआ कि बस बचपन से मेरे को एक आदत थी नकल करने की, किसी की भी नकल करने की। तो मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया, वैदिक धर्म प्रकाशिका हाई स्कूल में। तो मेरे पहले गुरु वहाँ मिले मेरे को, थिएटर के, जिनका नाम शशिकांत पाठक है। अब वो नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि बस मैं नकल करता रहता हूँ, टीचर्स की नकल करते रहता हूँ, मिमिक्री करते रहता हूँ, आवाज़ करते रहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई भास्कर, तुला एका मराठी नाटकात काम करायचं। म्हणलं बरं ठीक है। उसमें एक ही सेंटेंस था मेरे को, गावातला ढग गाढव। लेकिन मैं जब लोगों की नकल करता था तो मेरे को उतना फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैं स्टेज के ऊपर गया ना तो मेरे को इतना डर लगा कि पूछो मत, कांपते हुए अंदर आ गया विंग के अंदर। तो उन्होंने एक झापड़ रख दी और बोले कि जाओ जाके नकल करो, वहाँ पर बोलो गावातला ढग गाढव। तो पहला सबक वहाँ से शुरू हुआ मेरा। उसके बाद मेरे को पहले से आदत थी कि डांस देखना, नाटक देखना, पेंटिंग्स देखना। वो क्यों थी उसका रीज़न नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मैं हर पेंटिंग की एग्जीबिशन को वहाँ चालीबंडे पे कर रहे तो देखता था, हर नाटक को जाके देखता था, हर गाने के गज़ल के प्रोग्राम को जाता था, क्लासिकल के प्रोग्राम को जाता था। लेकिन आर्ट की तरफ एक अट्रैक्शन था मेरे को, उसलिए शुरू हो गया। और जब मैं HSC पास किया 1955 में 56 में,
तो वहाँ पर शालीबंडे पे एक ललित कला निकेतन बोल के स्कूल था, मतलब एक ग्रुप था। वो लोग हर साल गणेश उत्सव में, गणेश मेला बोलते हैं हम, उसमें नाटक करते थे, एकांकी करते थे, नाट्य छटा करते थे। तो उसमें मैं भाग लेता था और हर वक्त तालियां ही मिलती गई। यानी ताजुब की बात है कि मेरे को आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई विल गेट दिस क्लैपिंग फ्रॉम ऑडियंस एट ऑल दैट एज। बट उसके बाद मेरे गुरुजी ने ये बताया कि बेटा सेटिस्फैक्शन में अगर मिल जाएगा तेरे को तो तू आगे नहीं बढ़ेगा। अब 55 के बाद जब मैं HSC पास किया, उसके बाद मेरे को गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं था। बचपन से ही वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया था। मदर तो अनपढ़ थी, अपनी पढ़ी लिखी नहीं थी, सिस्टर थी छोटी सी, वो मेरे साथ मतलब 2 साल पहले पीछे थी, 10th में 9th में 10th में थी शायद। वो औरंगाबाद में है। तो वहाँ से शुरू हो गया। तो 1956 में SRC हुआ, SRC, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर गलत ईयर बोल रहा हूँ तो मैं दिमाग मेरे को बड़ा काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं गलत बोलूँगा आपको। हो सकता है 1956 में तूफान से पहले और बाद ये नाटक खेला गया। अब वो हिंदी में था। ताज्जुब इस चीज़ का है कि मैंने और मेरे बहन ने दोनों ने भी काम किया था उसमें, एक अंकिका में, एक फुल लेंथ था वो। और सब्जेक्ट ऐसा था कि एक फैमिली है, 2 फैमिली है, 3 फैमिली है, घर गली में रहते हैं, और वहाँ पर मुस्लिम फैमिली है, हिंदू फैमिली है और तमिल लोग है। लेकिन ये जाते वक्त SRC में क्या हुआ, ये हिंदू फैमिली के जो लोग थे उनका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हो गया SRC के बाद। तो SRC के पहले हम बहुत दोस्त था, अच्छे थे, बहुत मुस्लिम घरों में। अब जब आइन वक्त पे ऐसा चले जाना पड़ा मेरे वो पेरेंट्स को, नाटक के जो कैरेक्टर्स थे उनको, कि महाराष्ट्र जाना पड़ा और हमको छोड़ना पड़ा यहाँ दोनों को, बहन भाई को। तो बहन भाई, हम भाई बहन उनके मुस्लिम लोगों के घर में रहते थे। लेकिन उन लोगों ने कभी हम पे ज़बरदस्ती नहीं की कि तुम ये खाओ वो खाओ, तुम्हारा रिचुअल तुम करो, तुम्हारी ईद तुम करो, तुम्हारा ये खाना वेजिटेरियन बना के दो। तो वो लोगों ने 2-3 महीने हमको संभाला वैसा। और उसके बाद जब वो नाटक हुआ, जब उसमें का कैरेक्टर जब मैं किया छोटे भैया का, तो उसमें भी क्लैपिंग मिली लोगों को। लेकिन लोगों की आंखों में आंसू थे बहुत, क्योंकि ये फैमिली फिर वापस टूट जाती है। तो वहाँ से मेरा पहला नाटक, बड़ा नाटक शुरू हुआ, यानी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद ये सुल्तान बाजार में एरिया में महाराष्ट्रियन जगह बहुत है। तो जब एक ग्रुप था वहाँ पर, नाम मैं भूल गया, तो शशिकांत पाठक ने कहा कि मेरे को तेरे को ये रोल करना है, आश्चर्य नंबर 10 बोल के प्ले था, उसमें तेरे को काम करना है। तो अब कैसा करना है? अच्छा, ये लोग जो है तो बड़े लोग लेवल था ना थोड़ा हमारा, शालीबंडे के लोग मैंने बिल्कुल पिछड़े इसके लोग हैं, उनके दिमाग नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, और आर्ट सब इधर ही है बोल के उनका ख्याल था ये लोगों का। लेकिन वैसा नहीं हुआ। नाटक करने के बाद शशिकांत पाठक ने बताया था कि देखो ये बच्चा नया आया है, इसको काम दे रहा हूँ मैं आश्चर्य नंबर 10 में, और उसको विलन का रोल है। तो मैंने कहा ठीक है देंगे। तो जो मेरे साथी थे, मामा बोलते थे हम उनको, सूबेदार मामा, और देशपांडे साहब बोलते, अभी हैं देशपांडे साहब शायद। तो वो मिलने के बाद मैं बोला, मामा अगर मैं मेरे सालू लुकी को अगर तालियां नहीं लूँगा ना तो मैं नाटक करना छोड़ दूँगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। कॉन्फिडेंस अलग है और गर्व आना अलग है। अभी मैंने प्राउड होना अलग है, प्राउड ही नहीं था मैंने कहा नहीं। बोले शर्त लगाओ। बोले वो लोग विस्की पीते थे, बोला एक बॉटल की शर्त, अगर मैं हार गया तो मैं आपको 1 बॉटल दूंगा, नहीं तो आप मेरे को 1 बॉटल देना। अच्छी बात है। जैसे ही हमारी सालों की ख़त्म हुई वैसे क्लैपिंग रविंद्र भारती में। और तुम बोलना भूल गया, मैं नाटक देखने के लिए रविंद्र भारती को पैदल जाता था शालीबंडे से। बहुत दूर है बहुत शालीबंडा। हाँ, बहुत दूर है। जाता था, 2 घंटे पहले निकलता था, नाटक खत्म होने के बाद फिर पैदल आता था, क्योंकि फाइनेंशियली इतना कुछ नहीं था। और बचपन से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। किसी होटल में भी काम किया था मैंने,
तो उसमें क्योंकि होटल की लाइफ कैसी रहती है वो पता चलने के लिए काम किया था मैंने। और बचपन से ही और बेधड़क बिंदास था, क्योंकि वालिद साहब नहीं थे ना, तो कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है कि ये करो, ये एजुकेशन अच्छा करो, आगे बढ़ो, ये करो, ये कोर्स करो, वो कोर्स करो। तो जब एडवर्टाइजमेंट आया पेपर में स्टॉकमैन कंपाउंडर वेटरनरी साइंस का, वेटरनरी डिसिप्लिन का, तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि स्कॉलरशिप थी वहाँ और उसके बाद नौकरी की डेफिनेट थी। लेकिन मैंने यहाँ MT खान बोल के एक थे, उन्होंने कहा कि भास्कर तुम महाराष्ट्र हो ना, तुम महाराष्ट्र में चले जाओ, तुमको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। और मैं जब वहाँ से महाराष्ट्र चले गए, मेरा ननिहाल जो है सो मोमिनाबाद अम्बेजोगाई जो है वहाँ पर जाने के बाद मैंने भी नाटक नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तमाशा जाके देखता था, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर जाके देखना तमाशा। किसी गांव में ग्रुप रहा तो उसके साथ काम करना शुरू करना, खेड़े गांव में ग्रुप रहे तो उनके साथ काम करना। मैंने राज सन्यास के जैसा, प्रेम सन्यास के जैसा नाटक, गडकरी के नाटक जो बहुत फेमस है उसमें काम किया। और उसके बाद 56 से लेके 63 तक मैं घूमता ही था, यानी ट्रांसफ़र होते थे, ट्रांसफ़र नागपुर भी गया था मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर को ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पर भी मैंने नाटक देखे। वहाँ धनवटे रंग मंदिर बोल के है, बहुत फेमस है, तो वहाँ पर भी मैंने नाटक देखे। लेकिन नाटक मैं सिनेमा नहीं देखता था उतना जितना नाटक देखता था। और नाटक में काम करना, नाटक में ये कैसा रहना, उसमें से अच्छा क्या है यही सीखा मैंने। यानी एक आधा नाटक अगर नए ग्रुप ने किया होगा, अब मैचर ग्रुप होगा, उसमें गलतियाँ होती थी, लेकिन उसमें उन्होंने क्या अच्छा किया है वो देखना बहुत ज़रूरी था, और वो देखा मैंने। और उसका मेरे पास एक स्टॉक हो गया बहुत कि क्या करना है। फिर 63 में वापस हैदराबाद आया। वापस हैदराबाद आने के बाद MBT बोल के ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, वहाँ पर काम किया ट्रांसपोर्ट कंपनी में। लेकिन 63 के बाद मैंने एक 2-4 नाटकों में काम किया, इवन याद नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन 68 में मैं PUC पास हो गया, प्री यूनिवर्सिटी को। मेरे इसमें एजुकेशन में देखो आप 55 किधर और 60 किधर प्री यूनिवर्सिटी। और फिर 71 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करा इवनिंग में, BCom में, कॉमर्स इवनिंग विकर्जनी कॉलेज में। और वहाँ से, लेकिन जब तक मैं यहाँ के बहुत से ग्रुप से मिला था, और रमेश पात्रा बोल के थे INT के, उनके साथ पहले काम किया। रेत की दीवार में काम किया था। और रेत की दीवार का एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि दया किशन गोयल अब जो हैं डायरेक्टर, सिनेमा के डायरेक्टर हैं, वो फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत से, पता नहीं अलग अलग जगह पे हैं, वो अलग अलग काम किया है उन्होंने। तो उन्होंने वो रेत की दीवार में काम कर रहे थे। और रेत की दीवार में काम करते वक्त मेरी भास्कर राव कुलकर्णी से, विजय परेलकर से, आनंद कुलकर्णी से, और ये BS कुलकर्णी से, ये प्रताप सुर्वे से, ये सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो हमने सोचा कि भाई रेत की दीवार काम करते हैं, तो उसमें से एक याद किस्सा याद सुनाता हूँ। हमारे दया किशन गोयल साहब, उनको कैरेक्टर के लोगों तालियां बहुत बजाते थे। अब उन्होंने ज़्यादा दूसरे शो में उन्होंने ज़्यादा ही करना शुरू करे, तो हमारे अनंत ने क्या किया, अंदर से बंदूक लाई, ला के उसको बताई, बोले चल अंदर जा, तेरा काम खत्म हो गया, डायलॉग बहुत मत बोल के अंदर बिठा दिया। तो यानी वैसे भी इंसिडेंट हुए हैं, देखा हूँ मैं। और रेत की दीवार के बाद INT के और एक दूध का दूध पानी का पानी, इसमें काम किया। मेरे साथ राज अस्थाना थे, उसके बाद नवरोज थे, उसके बाद रमेश पात्रा खुद थे। तो रंगधारा की नहीं बताता हूँ, रंगधारा की शुरुआत ऐसी हुई कि हम 4 लोग जमा हुए। हमारे एक दोस्त थे तेज राजेंद्र सिंह, तो बोले नाटक कैसा करना चाहिए। नाटक वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छा कवि था वो। और उसके बाद हमने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया था, क्योंकि ग्रुप अगर बना तो क्योंकि कंपलसरी था कि महाराष्ट्र स्टेट कंपटीशन को अगर जाना है आपको तो ग्रुप बनाना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड ग्रुप होना ज़रूरी है। तो वो रजिस्टर्ड ग्रुप के लिए मैं यहाँ से हम रंगधारा शुरुआत करें 73 में रजिस्टर करवाया।
उसको कराने के पहले एक रंगशाला का एक प्रोडक्शन था, एक नारी चार ब्रह्मचारी, जिसमें विजय परेकर, मैं और अनंत कुलकर्णी भी साथ है, भास्करराव कुलकर्णी थे, और प्रशांत सवड़े बोल के था, वो बहुत अच्छा गाता था। तो एक नारी तक उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करी थी याद है आपको? कि हमने कहा था नहीं हंसने वाले को टिकट के पैसे वापस दिए जाएंगे, नहीं हंसने वाले को टिकट के पैसे वापस दिए जाएंगे। लेकिन ये क्या था कि रंगशाला ने जब शुरुआत करी तो हमने कहा कि फ्री शो तो नहीं करेंगे, हम इन्विटेशन पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि इन्विटेशन पे शो करे तो कैसा होता है कि भाई मेरे को वक्त नहीं था, मैं तुम्हारे लिए आया क्योंकि तुम हमें हो, उसको नाटक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो टिकट खरीद के आएगा ना वो नाटक देखेगा। एक नारी चार ब्रह्मचारी मराठी में बेकम बे बेदनी चार ऐसा कुछ नाम है, जिसका कृष्णदत्त जो प्रिंसिपल थे इसके मारवाड़ी कौन सी हिंदी महाविद्यालय के, उन्होंने ट्रांसलेट किया था, और उसमें नातूबाई ने काम किया था, प्रफुल्लता नातू, और उनकी बेटी नातू, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। प्रफुल्लता नातू इतने कोऑपरेटिव थे कि उनको बुखार रहने के बाद भी वो लोग नांदेड़ को आए हमारे साथ प्ले करने के लिए। तो रंगशाला का प्रवास यहाँ से शुरू हुआ। 1973 में हमने डिसाइड किया कि रंगशाला ये कंपटीशन को जाएंगे। तो जब हमारे तेज राजेंद्र सिंह, हम रुस्तुम फार्म में मिलते थे हमेशा, रुस्तुम फार्म में मिलने के बाद बोले, अरे भास्कर ये क्या नाटक करता है यार, ये नाटक देख सैमुअल बकेट का, इसको अवार्ड मिला है 1936 का 68 का कुछ तो भी वो नोबेल प्राइज मिला है इसको। तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे, नाटक को ज़रूर देखेंगे, पढ़ेंगे हम। हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद लगा कि मुझे ये नाटक में कुछ अलग है, क्योंकि ये नाटक में लकी का स्पीच है। लकी का स्पीच ये है कि वी आर वेटिंग फॉर गॉडोत एंड अटेंडेंट गॉडोत, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर गॉडोत, और वो गॉडोत कभी आने वाला नहीं है, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा। और लकी का जो स्पीच है, आजकल के ज़माने में इंटेलेक्चुअल्स की रस्सी पूरे कैपिटल हाथों में रहती, बड़े लोगों के हाथों में रहती है, जो बगैर पढ़े लिखे नहीं रहते, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स का काम करके उन्होंने काम उससे काम करा लेते हैं और अपने नाम पे डाल देते। तो वो लकी का कैरेक्टर मेरे को पसंद नहीं आया। वो बोलता है कि हमने दिन रात के खेल निकाले, इतने ऑपरेशन निकाले, इसके बाद भी इंसान तड़पता है और मरता है। ये बिल्कुल इतना मास्टरपीस है वो सालों, लेकिन वो करने के लिए तो हमने कहा कि मैं अनुवाद खोल लूँगा। अनुवाद के लिए हमने परमिशन लिया है सैमुअल बकेट के ग्रुप से, कि जो परमिशन देते हैं तो मराठी में करने का। वो मेरे पीएचडी की थीसिस में है एप्लीकेशन, मतलब मैं जो आप लेटर दिया था उसको, उनका लेटर आया। तो 73 में जब शुरू किया हमने, 72 में शुरू किया शायद ट्रांसलेशन, और 73 में हम कंपटीशन चले गए। लेकिन मेरे को ट्रांसलेशन करने के लिए मराठी में मेरे को डिक्शनरियाँ बाजू रखना पड़ते थे, डिक्शनरियाँ बाजू, और वर्ड्स का मीनिंग अगर बराबर नहीं आता, थॉट सबटेक्स्ट क्या है समझ में नहीं आता ना, तो फिर मैं कट करता था, फिर लिखता था, फिर कट करता था, फिर लिखता था। आइजैक सिक्वेरा को साहब को मराठी थोड़ी थोड़ी आती थी, प्रोफेसर आइजैक सिक्वेरा से सीफिल के थे उनको। तो मैंने उनसे बताया कि ये ऐसा मैं कर रहा हूँ, तो सुनाइए बोले मेरे को, तो सुनाया उनको हम। तो उसमें नाटक में विजय परेकर, भास्कर शिवाड़कर और विजय परेकर, भास्कर शिवाड़कर, सुहास फलशीकर, अब जो बहुत फेमस एक्टर है, मैंने महाराष्ट्र में छाया हुआ है, उसको जॉब भी इसी नौकरी के इसी अवार्ड को मिला, उसको गोल्ड मेडल मिला उसमें, और बैंक में उसको नौकरी मिल गई, क्योंकि बैंक में कोठा रहता था, रिजर्व कोठा था पहले। तो वेटिंग फॉर गोदो का अनुवाद वहाँ से किया हमने, और पूरे के पूरे 7 के 7 प्राइजेस पूरे लेके आए, 6 के 6 प्राइजेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रिप्ट, बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट स्क्रिप्ट ये। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमारे उसके 6 परफॉर्मेंसेस अलग अलग जगह पे करवाए। इसके बाद 74 में मेरी मुलाकात ये मैक्स मुलर भवन से, हमारे मागो मायरा साहब भी थे मेरे गुरु, मागो मायरा, मोहन मनोहर चिन्नापट्टम और
हमारे वो वसंत गोडसे प्रोफेसर थे इसमें फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्ट कॉलेज में। अच्छा। तो उन्होंने बात की तो बोले हम करेंगे। तो 73 में हमने क्या किया था, तो मैंने 6 महीने में रिहर्सल करी थी, क्योंकि हमको लोगों ने पहले अरे क्या बच्चे हैं, इसमें हीरो नहीं है, हीरोइन नहीं है, लड़का आता हूँ क्या बोलता, जाता हूँ क्या बोलता, ऐसा निकल आएगा परसों आएगा ऐसा बोला। लेकिन वेटिंग फॉर गोडोट नहीं आ रहा है, गोडोट कैसा नहीं आ रहा। लेकिन उसमें क्रिश्चियन माइथोलॉजी के बहुत से थे, सिंबल थे। हाँ। आसमान काला हो गया है, आसमान लाल हो गया है, आसमान ये हो गया है, वैसा हो गया है। और शिप और गोट, ब्लैक शिप और वाइट गोट, उसमें फ़र्क है। तो वो शिप बच्चा जो आता है वो ब्लैक शिप लेके आता है, वो बोलता है कि गोदो आज नहीं आने वाला है, कल आने वाला है। तो ये लोग अब फिर खेल खेलते कि टाइम टू हाउ टू किल द टाइम। और वो इतना पावरफुल रहा कि वसंत गोडसे साहब ने उसका डायरेक्शन किया था, बहुत ही पावरफुल रहा। और 6 के 6 प्राइज, अच्छा ताजुब करेंगे, प्राइज देने को लेकर मैं नहीं गया। जिसने हमारे छोटे बच्चे का काम किया था उल्लास परेलकर, वो बच्चे को भेजा हमने। तो सब परेशान, अमोल पालेकर के प्ले थे उस वक्त, अमरीश पुरी का प्ले था हमारे कंपटीशन में, और वो INT बॉम्बे का प्ले था। ये सबको पार करके चले गए हम लोग। और हमारी पहचान हो गई चित्रे खानोलकर से, डॉक्टर हमारे डॉक्टर क्या नाम, श्री राम लागू से, विजया मेहता से जब पहचान हुई हमारी, तो वो 73 से चलते आए। 74 में हम मैक्स मुलर भवन चले गए। मैक्स मुलर भवन ने भी सिलेक्शन किया था, ग्रीक थिएटर का वर्कशॉप कर रहे थे लोग। तो ग्रीक थिएटर के वर्कशॉप में हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये ग्रुप चाहिए हमको। तो हम गए वहाँ पर। तो डॉक्टर नॉबर्ट जे मायर, वो जो ग्रिप्स के स्पेशलिस्ट थे, वो यहाँ आए थे। तो 3 महीने के लिए वर्कशॉप चला वो। ये क्या है ये ग्रिप्स थिएटर? ग्रिप्स थिएटर ऐसा है कि एडल्ट्स एक्ट फॉर द चिल्ड्रन एज ए चिल्ड्रन। तो जब क्योंकि चिल्ड्रन के थिएटर के साथ, चिल्ड्रन थिएटर के अंदर की एक बात है कि अगर तुम बड़े लोग इसकी कॉपी नहीं करेंगे ना, बड़े लोगों के बड़े कैरेक्टर्स अगर डालेंगे, बूढ़ा बूढ़ी ये वो, तो वो नहीं चलेगा। उसमें उनके प्रॉब्लम्स क्या है। तो चिक भैया तालम ताल पहला स्टॉकलॉक मिली पीली बोल के प्ले था, उसका अनुवाद ओल्डकर लुडविग ने किया था। ट्रांसलेशन हमारे वसंत गोडसे मागो महराज ने किया। उसमें गाने भी थे, हम सब लोग गाना गाते थे, चली 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 हमारी रेलगाड़ी। तो वो रेलगाड़ी की स्टोरी है। तो इंजन मालिक जो रहता ना, उन्हें क्या करता, इंजन के पार्ट्स निकाल देता, अलग अलग निकाल के अलग अलग जगह छुपा देता। तो हम लोग बोलते कि चलो चलो ढूंढ चले, चलो चलो ढूंढ कर चले, चलो चलो ढूंढने निकले। और एक एक पार्ट हमको मिलते रहता। तो उसमें बड़े अच्छे डायलॉग्स है। तो बोले हमारे आवाज़, इंजन की आवाज़ तो आती है, लेकिन हम पटाखे बम बम उड़ाए जैसा नहीं उड़ाते। बोले पटाखे ही है हमारे, ये खूबसूरती है। क्योंकि शांति, हमारा रॉकेट चांद पर जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। यानी जब ये नहीं था, तो उसके शिक्षक भैया के शोज बहुत हो गए। कलकत्ता भी गए थे ना? हाँ, तभी मैं शिक्षक भैया का काम किया था, मेन रोड। लेकिन हमको एक नॉबर्ट जे मायर से एक सीखने को मिला मेरे को, कि वो बोलता था कि चाय कॉफ़ी ब्रेक, व्हाट इज दिस ब्रेक, व्हाट इज दिस, यू पीपल व्हाट आर डूइंग, हाँ व्हाट आर डूइंग, नो 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 चाय ब्रेक। क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन था। अच्छा, योगासना योगा बहुत करवाते थे, एक्सरसाइजेस ऐसे कराते थे जो रिलेटेड टू प्ले सिचुएशन को रिलेटेड रहते। समझो भाई बहन है, तो भाई बहन में झगड़ा फुटबॉल के लिए हो रहा, ऐसा तो कैसा झगड़ोगे, सब्जेक्ट कंटेंट नहीं देते थे उन्होंने। तो कंटेंट देने के बाद हम लोग करते थे। और उसके मास्क जो है सो वो लक्ष्मण गौड़ ने बनाए थे। हाँ, और सेट डिज़ाइन रामचंद्र बोल के बच्चा, उन्होंने किया था। और उसके लाइटिंग वगैरह सब गोडसे साहब ने की थी। वो डायरेक्शन भी गोडसे साहब का ही था उसको पूरा। महाराज साहब भी थे, लेकिन गोडसे साहब का ही डायरेक्शन था पूरा। अब उसमें क्या हुआ, तो
गोडसे साहब की मेरी मुलाकात बहुत क्लोज हो गए हम लोग, क्योंकि वो तो बैचलर थे और उनके साथ हम जाना खाना खाते थे, जाते थे, बैठते थे हर संडे को, लेकिन डिस्कशन अबाउट द प्ले होता था। और मेरे बचपन से प्ले के नाटक पढ़ने की आदत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। चाहे इंग्लिश में रहो, चाहे हिंदी में रहो, चाहे मराठी में रहो, तीनों भाषा में भी नाटक पढ़ना ज़रूरी है। मैंने शेक्सपियर के 32 प्लेज पढ़ चुका हूँ मैं, 32 या 33 याद नहीं आ रहा मेरे को, सब पढ़ चुका हूँ। और उसमें ताजुब इस चीज़ का है कि हैमलेट मुझे पसंद आया, मैकबेथ मुझे पसंद आया, उसमें का ओथेलो मुझे पसंद आया, क्योंकि उसके अंदर रीज़न है। रीज़न है कि ओथेलो में रेस फीलिंग है, ब्लैक मोर वाइट गर्ल वहाँ पर है। उसके बाद मैकबेथ में अलग है, और हैमलेट में टू बी और नॉट टू बी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोचता है वो एक अलग होता है। फिर मिडसमर नाइट भी किया हमने थोड़ा सा, और उसके बाद मैं करता था तो बचपन में ग्रुप को अलग अलग लेके ग्रुप को करता था। मैक्स फिक्स का फायर रेजर्स बोल के किया था, स्पॉन्सर्ड बाय मैक्स मुलर वॉर्न एंड स्पॉन्सर्ड बाय जर्मन कॉन्सुलेट जनरल। इट वॉज हमने हिंदी में भी किया पहले, उसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद बिंदु साहब ने किया है, और इंग्लिश में मैक्स फिक्स ने किया। इंग्लिश में मैक्स फिक्स का हम त्रिवेंद्रम गए थे, और यही एक्टर्स को लेके हमारी अंग्रेजी बोलने का ढंग जो था वो अपना था। हम कॉपी नहीं करते थे किसी अमेरिकन प्ले की डिक्शन की या ब्रिटिश डिक्शन की। हम इंडियन हैं, हमारी इंडियन अंग्रेजी ऐसी रहेगी, इसी में हम बोलेंगे, तो एक्सेप्ट किया गया वो मैक्स फिक्स का। तो मैक्स मुलर वॉर्न के साथ मैंने 2-3 प्ले करे। अच्छा, विनय की मुलाकात का सवाल अलग है, कैसे हुआ? हाँ, अच्छा, तब आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आ गए? हाँ, तब आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आ गए? हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नहीं, तभी नहीं गया मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। तुमको बोलना है, बहुत मज़े की चीज़ है वो। हैदराबाद यूनिवर्सिटी तो बाद में सिलेक्शन हुआ, वो कैसा अलग हुआ। 1980 में शायद 1980 में शायद या 1970 में 76 में विनय का पहला प्ले देखा था, कॉफ़ी हाउस में इंतज़ार, वो निज़ाम कॉलेज में देखा था उसमें, और विनय थे और जया किशन ने डायरेक्ट किया था वो। उसके बाद विनय से मुलाकात हुई हमारी, तो विनय को हमने सेलेक्ट किया था इसलिए कि विनय के अंदर की जो क्वालिटी है ना, वॉइस क्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, ये बहुत गिफ्टेड है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हर आदमी कर सकेगा वो, और विनय ने किया है वो, हर आदमी। तो हमारा सिलेक्शन भी बराबर था, क्योंकि विनय को लेके साथ करना बोल तो बहुत मज़े की बात थी। और उसके बाद अब ये 80 में 76 में याद नहीं आ रहा मेरे को, विनय के बाद फिर उसके बाद तोकेलात मिली पिली किया, फिर सुपरमैन चमकदार सुपरमैन किया, गुड्डी पप्पू मुन्ना किया। इसमें सब में विनय खेले तो कहाँ खेले किया, इसमें सब में विनय ही मेन कैरेक्टर थे। विनय, भावना थी, भावना सेठ थी, रश्मि सेठ थे, ये सभी लोग काम कर रहे थे। उमा भी थी ना? हाँ? उमा नहीं, उमा आरोप में थी। आरोप बोल के जो प्ले किया था मैंने, उसमें उमा थी। उमा और विनय दोनों ही कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक लोगों को बांध के रखते, इतना अच्छा किया। लेकिन विनय के ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस है, दूसरे एक्टर्स में भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन जहाँ तक विनय का सवाल है वहाँ पर तो विनय के पास दिया तो वो 101% देता है, कभी 100% नहीं खाली। तो इसीलिए मैंने उनको नट सम्राट में हिंदी में, उसके बाद गांधी अम्बेडकर में उसमें, उसके बाद नथुराम गोडसे में उसमें भी किया, उनको लेके किया। ओलियाना, हाँ, ओलियाना में, और अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, मेरे को याद नहीं आ रहा वो जी, दोनों प्ले दीप्ति गरेवाल, दीप्ति